Look at this example. Everything is aligned, no doubt. Although everything is aligned, but they are not making sense at all, right? And here we can fix it with proximity, like how good it is looking right now, by just using some design principles. Like, isn't it amazing, guys, how you can use these design principles to make your design looks better? Users don't read web pages, they scan. Well, now I'm going to prove it. Try to read the next example I'm showing you. Let me know in the comments किस किसने same pattern में पढ़ा. Right? Yes, if you have read this in the same manner. The reason why you read this in this manner only is visual hierarchy. Notice some words are bolder than the other, and this is why you are paying more attention to it, right? अब visual hierarchy की बात आ गई, तो let's discuss more about it, right? Humans tends to focus on the things at a time, at one thing at a time, but good design guide the audience. मैंने उस टाइम तुम लोगों को गाइड करा कि now read this, now read this, now read this. So it's an example of good hierarchy. Because the more bigger is more visible. Hence, higher in the hierarchy, smaller and small and less visible element will be in the lower hierarchy, right? Let's take an example of a very famous website, Facebook. In what hierarchy do you scan this page? What do you first look and then what do you look at second? Let me know in the comments, guys. Yeah. Did you read in this manner only? There are mainly two patterns, Z pattern and F pattern. That is why in 90% of the website, logos are placed on the left upper side. Now you guys know why logos are placed here, right? So Akshit, here are some ways. So Akshit, how can I make a good visual hierarchy? So guys, here are some ways to make a good visual hierarchy. First of all, let's talk about size. इन सब चीजों के बारे में अभी मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ, इसके बाद हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे. Size. You grab your attention to the bigger size font and then you pay attention to the subheading and then you start reading the small paragraph like I shown you in that example, right? Let's talk about colors. Colors change it to grab the attention. Contrast. It is used to show the importance. जहां भी तुमको importance दिखानी होती है, you can use contrast. Space. It is used to give direction to the user. Now I will show you how you can use this concept to make a good visual hierarchy. Think big. By upping up the size of big, you give an impression of a good visual hierarchy. With just one look, I know what designer is trying to say. अगर मैं यहाँ पे normally think big लिख देता, then it will तुमको थोड़ा सोचने में टाइम लगता कि यार what is the meaning of it. But अब मैंने तुमको एक glance में समझ में आ गया कि this is the meaning of it, right? Let's talk about colors. If you focus on the color, you can find another word that is self-respect, right? Although it is not clearly written here, but by using colors, we can make it. This is how you can use colors in visual hierarchy. Let's talk about contrast. One side is a min and the other side is white space. By using contrast, we can make the design look pop. Let's talk about space. Even though this looks like an incomplete design, but you have exact idea what is exactly there. Two bears are hugging each other. Although the black one is not there, but it seems like he is there, right? So it is an example of a good space. Yeah. Well, human are someone who try to attach everything with their emotion. As you can see, there are two same words, but with using different fonts. On the left hand side, gives you a very horrific serial killer type of look. भाई मैं तो ये कभी accept नहीं करने का किसी का. And on the right hand side,
and gives you a very genuine look. Like, so you get this point, right? This is how typography impact human emotions. Let's talk more about typography. Typography, it is an art of arranging text in a beautiful manner. Now, there are no limits to how you can use typography, but there are few rules. Mostly, there are four type of fonts: serif font, sans serif font, display, script. ये जो डिस्प्ले है ये तो भाई देखो कभी मत यूज करना तुम, ये it is just existing. We don't use that much. Script, it is used for writing purposes, for calligraphy purposes. जो तुम मेन फॉन्ट्स यूज करोगे इट विल बी serif और sans serif. अगर तुमने इस पूरी पीपीटी में नोटिस करा तो मैंने हर जगह sans serif फॉन्ट यूज करा हुआ है. Why? Let me tell you. So sans serif font is mainly used for print media and headlines. The sans serif font have a little curvature at the end, which makes them look a little bit premium. That is why brands are all also using it. For example, this Zara is using a serif font, but there is no hard and fast rule to use it. Like Adidas do not use serif font, Adidas use sans serif font. Here is more about these fonts. I have already explained you all these things. So sans serif fonts are mostly used for digital medium. Like मैं तुमको presentation दिखा रहा हूँ, it's a digital medium. तो मैंने हर जगह sans serif font use करा. Why? Because when dealing with the digital medium, you have a very short attention span. That is why you need a font that is easier to interpret. ये ह्यूमन माइंड को स्टार्ट मतलब बहुत ही क्लियरली समझ में आता है, इसको कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ता है. ओके, इसका एक लाइव एग्जांपल देख लो. अपना फोन खोलो, उसमें व्हाट्सएप या कोई भी डिफरेंट एप्लीकेशन तुम खोलो, तुमको sans serif फॉन्ट ही मिलेगा हर जगह. व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर डिजिटल मीडियम. लेस इज मोर. बीइंग इंडियन, भाई मेरी तो आदत रहती है जब भी मैं शादी वादी में जाता हूँ, एक प्लेट में इंडियन ट्राई टू पुट एवरीथिंग. जितना फूड आ सकता है वो सब भर लेते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंडियन इंजीनियर्स आर डूइंग. एक जगह सब भर देते हैं वो. लाइक तुम एसबीआई की ऐप देख लो या भीम की ऐप देख लो, एक जगह सब उन्होंने सारी चीजें एक जगह कंजेस्टेडली एडजस्ट करी हुई हैं उन लोगों ने. दैट इज व्हाई दे आर नॉट लुकिंग गुड. दे आर लाइक की कोड कर लेंगे चलेगा भाई. दे डोंट फोकस ऑन दीज यूआई एस्पेक्ट व्हिच आर, बट दे शुड. दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेस इज मोर. यस डेफिनेटली. तुम इस पूरी स्लाइड में देखना, यहाँ पे जितनी कम चीजें हो सकती हैं मैंने उतनी कम चीजों का यूज करा. अवॉइड यूजिंग मोर देन 2 fonts in a design. लाइक तुम ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर मैंने ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज के फॉन्ट हैं, ये दोनों एक साथ यूज करें तो इट इज नॉट लुकिंग गुड, राइट? 2 fonts are more than enough for a single decision. Do not use 2 sans serif font. Serif, style, display and paste together. Letter spacing. Do you guys can see the difference between letter spacing जो यहाँ लिखा हुआ है and here typography? If yes, then let me know in the comment. Yeah. So it makes you feel more paranomic. Like in this poster, the graphic designer is trying to make you feel more paranomic. It is very कॉमन इन साइंस-फाई मूवीज. तुम लोगों ने भी जैसे इंसेप्शन भी तुम लोगों ने देखी होगी, उसमें भी इस फॉन्ट का यूज काफी करा हुआ है. इंटरस्टेलर में तो काफी जगहों पे मैंने देखा है, एंडिंग में उन्होंने यही फॉन्ट में इंटरस्टेलर की एंडिंग करी है. तो हाँ, इट इज वेरी कॉमन इन साइंस-फाई मूवीज. एवरी टाइपफेस कम्स विद दीज डिफरेंट वेट. हर टाइपफेस, जब तुम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फोटोशॉप यूज कर रहे हो या फिग्मा यूज कर रहे हो, हर फॉन्ट का एक डिफरेंट वेट होता है, राइट? तुम लोगों ने अगर कभी यूज करा होगा तो तुमने नोटिस करा होगा. फॉन्ट सेम रहता है
बट उसके फेजेस रहते हैं, लाइट, रेगुलर, सेमी बोल्ड, बोल्ड एंड एक्स्ट्रा बोल्ड। एंड हम इसको अकॉर्डिंग टू देयर विजुअल हायरार्की अरेंज कर सकते हैं, राइट? एवरी टाइप कम्स विद these different font weight. So guys, you know what, why I like UX so much is because UX is connected to everything. It is connected to every aspect of your life, everything you are experiencing in your daily life. That is why it is actually called science of life. So you get to know, to learn everything from your surrounding. For example, there is a famous quote: music is the space between the notes. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अगर फ्लूट बजाने लग जाऊंगा तो इट विल बी नॉट अ म्यूजिक, इट विल बी अ नॉइस, राइट? बिकॉज देयर इज नो स्पेस. You need to pause and need space to work out in the harmony, right? ओके गाइस, टेल मी, अब आप, मैंने काफी चीजें तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, अब तुम लोगों का काम है, देखो बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू कैन यू सी हियर? राइट इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. ओके, ओके, ये टू, एग्जैक्टली. कोई नॉर्मल बंदा यही सोचेगा, बट इन डिजाइन what we actually look at things like, there is also a thing called white space. अगर ये चीज नहीं होगी ना तो it will not look more appealing as it is looking right now. This is how human mind works. So now you guys know कि डिजाइन में 1+1 3 होता है, राइट? अब भाई कोडर्स आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं भाई 1+1 तो 11 भी होता है, राइट? So what emotion do you feel when you see this color? Let me know in the comments, guys. Yes, yes. lol. अच्छा भाई हल्क. Yeah. So this is how human mind works. Everything, every color you can see is related to an emotion. Green, we can try to attach everything to our emotions. Like for example, you guys can see here, every color, it is attached to an human emotion. कि रेड लव, एनर्जी, डेंजर से रिलेटेड रहता है. येलो हमारा वार्म एंड हैप्पी, हैप्पीनेस से रिलेटेड रहता है. लग्जरी, ये चीज ना, ये जो चीज पैटर्न है ना, ये तुम काफी सारे ऐप जो तुम डेली एप्स यूज करते हो उसमें भी ये चीज देख सकते हो कि हाउ ब्रांड्स आर यूजिंग दिस कलर टू प्ले विद योर इमोशंस. अगर तुम कभी ध्यान से नोटिस करोगे तो तुमको पता लगेगा. बाकी मैं चीजों के बारे में अभी आगे बताने वाला हूँ with very very good examples. It takes 90 minutes for a customer to form an opinion about a product, and 90% of the time this opinion is influenced by colors, right? Okay guys, tell me, which one do you prefer, Google or Bheem? Let me know in the comments. Why Google? Because it's cause of its simplicity, because of the colors it is using, it using very limited amount of color, right? Like it is, अभी हम देख सकते हैं मेजॉरिटी कलर, जो प्राइमरी कलर यहाँ पे यूज हो रहा है वो ब्लू कलर हो रहा है, right? Which signifies trust, peace and technology, right? So they have a reason why they are using this color. Whereas we have a Bheem UPI. Bheem UPI, Google Pay is based on Bheem UPI. Google Pay is using their services. But why you are not using Bheem directly? Because of their poor UI, poor user interface. Yeah, exactly. Interactive UI. So, which one do you prefer? Netflix or Amazon? Let me know in the comments. दोनों में से कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स और Amazon, अकॉर्डिंग टू यू?
Okay. So let me tell you why Netflix is better than Amazon Prime. Can you guys notice the color? You are habitual at seeing movies in a cinema hall. When you are growing up, your brain is hardwired to remember these things. So, so what are the color in a regular cinema hall? These are the colors used in a regular cinema hall. Yes, and yes, Netflix is also using these color to make you feel like you are enjoying in cinema. Netflix is playing with a psychology of your mind. Netflix has a reason why he is using these color only. So now you guys know the reason why Netflix is using only red, black and white color, right? ऐसी किसी ने रैंडमली नहीं सोच लिया कि भाई चलो यार एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये रैंडमली रख लेते हैं। काफी रिसर्च लगती है इन सब चीजों में, काफी दिमाग लगा लगता है इन सब चीजों में। Isn't it amazing, guys? How brand color. So whenever you are working with a brand और तुम कोई भी टॉप एंड ब्रांड देख लो, उनका अपना एक कलर पैलेट रहता है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो वो इसी कलर पैलेट में जितने भी शेड्स होते हैं, बस इन्हीं को यूज करते हैं अपने डिजाइन में, जिसके थ्रू उनको पता लगता है कि एक आइडेंटिटी बन जाती है उनकी, राइट? जैसे नेटफ्लिक्स की आइडेंटिटी रेड, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उनकी आइडेंटिटी है वो, इनके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। तुम अगर कभी फ्रीलांसिंग में भी जाओगे, तो जो क्लाइंट होगा उसकी एक स्टाइल होगा, एक डिजाइन सिस्टम होगा उसमें, जो तुमको पता है कि ब्रो यू हैव टू यूज दीज कलर्स ओनली, राइट? ऐसे ही टाइप फेजेस के साथ होता है। टाइप फेजेस भी लोगों के फिक्स होते हैं कि भाई हमको बस यही टाइप फेजेस यूज करने हैं। Now you guys know the reason why Google won, right? First reason, negative space. There is a very good amount of negative space in this, कि कोई भी चीज ऐसी हौच पौच नहीं लग रही है तुमको, हर चीज अपनी जगह पर है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का काफी अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे व्हाट इफ गूगल को हम अगर यहाँ पे कर देता है, सर्च बार को यहाँ कर देता है, इट विल नॉट लुक गुड, राइट? बैलेंस, हर चीज का यहाँ पे बैलेंस है। कलर्स भी तुम देखोगे ना, गूगल के किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाओ तुम, यही कलर्स तुम्हें मिलेंगे, इनके अलावा कोई कलर नहीं मिलने का तुमको, बिकॉज दे आर यूजिंग दीज कलर ओनली। तो हर चीज के पीछे रीजन रहता है इन लोगों का एक। कॉन्ट्रास्ट, कलर्स एंड शेप। शेप भी उनकी काफी टाइम से यही रही है, दे डोंट चेंज इट। केस स्टडी, इट डजंट। हाँ, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज फेसबुक बिगेस्ट फीचर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। यस, अकॉर्डिंग टू यू, ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जब फेसबुक, जब ये सोशल मीडिया वाली चीज बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, तो इसने कैसे रिवॉल्यूशन लाया था इंटरनेट में? यस, यस, कनेक्टिविटी, यस, यस, बट देयर बट एक बहुत छोटा चेंज लाया उन्होंने, विच इज लाइक बटन। पहले फेसबुक में लाइक बटन नहीं यूज होता था, ठीक है? इसके बाद से क्या करा लोगों ने, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको दे स्टार्ट कनेक्टिंग। यस, यस, लाइक बटन, यस हरीश। They start connecting their social life with real life. It doesn't seem a very significant change, but in 2004, 2005, it is a very, very big change for our youth. In a user perspective, it's not a very big change, but even though a single feature was very theoretically thought out, इस सिंगल फीचर पे काफी रिसर्च करी थी इन लोगों ने, एंड देन दे केम आउट विद दिस सोल्यूशन। मैं जब ये केस स्टडी पढ़ रहा था, तो मेरे को ये पता लगा कि पहले फ्रेंड्स नहीं होते थे फेसबुक पे, पहले वो फैंस होता था, पहले फ्रेंड वाला सिस्टम ये था वहां पे। एंड जब ये लाइक फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देयर सोशल लाइफ विद रियल लाइफ। ओके, दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि भाई अगर तेरे मेरे से ज्यादा लाइक्स हैं, तो तू मेरे से ज्यादा अच्छा होगा। द मोर लाइक्स यू हैव, द मोर पॉपुलर यू आर। ये चीज तुम अभी भी देखोगे, तो फॉलोअर्स में और लाइक्स में चेंज हो चुकी है, राइट?
and which eventually leads to depression and all these things you guys see on social media. And these things eventually give birth to a new thing called social media marketing, right? And today, social media marketing is 49.04 billion dollar industry, all thanks to a simple feature, right? लेट्स टॉक अबाउट कि भाई अक्षित, अभी हमने यूजर इंटरफेस के बारे में काफी बात कर ली है, यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही है. लेट्स टॉक अबाउट more into UI user experience. Yes, obviously it is not what you guys are thinking right now. It have a different meaning. So before answering this question, I would like you to answer this question. Which texting app will you choose? A or B? Let me know in the comments. Yeah, reaction button was also a good feature. Yes. Okay, so let's see. First one is Hike and second one is WhatsApp. Isn't it surprising? In the initial stage of WhatsApp पे कुछ नहीं था भाई ना, उस पे 16 MB की फाइल शेयर कर सकते थे, whereas हाइक पे सब कुछ था. लेकिन हाइक ने गलती कहाँ कर दी? हाइक ने एक थाली में सब परोस के दे दिया हर जनता को. भाई एट द एंड ऑफ द डे हमारे घर वालों को, मतलब मैं अपना स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज ही तो भेजने हैं, राइट? तो जो टारगेट ऑडियंस थी हाइक थी वो बहुत डिफरेंट थी. बट व्हाट्सएप ने इसी चीज को सिंपल रखा. व्हाट्सएप ने ज्यादा फीचर्स नहीं ऑफर करे एंड काफी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीचर्स ऑफर करे, जिसकी वजह से इट इज लीडिंग इनटू अ इंडस्ट्री, राइट? ओके, सो लेट्स. KISS stands for keep it simple stupid. Most system works best if they are kept as simple as possible rather than complicated. In design, simplicity should be the goal and any unnecessary complexity should be avoided. राइट? वही सेम एग्जाम्पल के साथ अभी तुम लोगों को समझाया मैंने, जैसा फेसबुक व्हाट्सएप और हाइक के साथ था. व्हाट्सएप ने चीजें काफी सिंपल रखी, उन्होंने यूजर्स को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाने दिया. यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के लिए जो यूजर्स होते हैं वो भगवान समान होते हैं भाई. मतलब दे डोंट वांट कि यूजर्स को कुछ भी एफर्ट मारना पड़ जाए कोई भी चीज करने के लिए, मिनिमम एफर्ट मारना पड़े. एक तो वो वाली अप्रोच निकालते हैं, और व्हाट्सएप ने वही अप्रोच निकाली कि मैं कुछ लिमिटेड चीजें प्रोवाइड करता हूँ, काफी कम चीजें प्रोवाइड करता हूँ टू आवर यूजर्स with a very good and user friendly user interface, unlike Hike. Let's talk about jobs in UX. वैसे तो if I am talking, अगर मैं इन जनरल बात करूं, जो कि हमारी इस इंडस्ट्री में ट्रेंड है, वो मल्टीटास्कर का है कि अगर तुम्हारा विजुअल डिजाइन अच्छा है, तुम्हारा यूजर इंटरफेस वाला पोर्शन अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस, सब जाकर तुम लोगों को हायर करेंगे. बट still they are categorized into these categories. User experience designer, it deals with all the user experience part, influences pattern behavior and the way users interact with interfaces, right? User interface बोला तो interaction designer create visually effective. जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर ने सोचा, चीजें सोची हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है एंड इस चीज को हम ऐसे सही कर सकते हैं, बट उसने तो बस सोल्यूशन बताना है, उसको डिजाइन कुछ नहीं करना है. तो देन उसका जो काम आएगा यूजर इंटरफेस वाले पर आएगा, जो उसको एक विजुअली अपीलिंग तरीके से डिजाइन करेगा. ओके, creates it he creates visually effective interface from the concepts from UX design. जो चीजें मैंने तो अभी तुम्हें बताई हैं, जो बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स हमको बताया मैंने अभी, सारी इन चीजों का यूज करेगा एंड मेक अ गुड डिजाइन which have a both good user interface and good user experience. यूजर एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट, ये एक सीनियर लेवल वाली जॉब होती है जब तुमको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है यूजर एक्सपीरियंस में. तुम प्रोडक्ट्स पे काम कर चुके होते हो, तुम
Yeah, you guys know. Senior level who deals with higher level challenges like business problems. जो बड़ी बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम्स को डील करती है ऑन लार्ज स्केल, जो मतलब जैसे कहते हैं ना सीनियर लेवल पे यूजर एक्सपीरियंस, तो वो एक जॉब होती है यूजर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजिस्ट. Senior level who look at bigger picture of UX, driving innovation and values. Then user experience researchers, जो इनिशियल फेज, जो रिसर्च वाला जो फेज करते हैं, जो मैं बता रहा था टारगेट ऑडियंस वाला जो फेज होता है, वो इन लोगों पर आता है. ऑल्दो अगर तुम इंडस्ट्री में देखोगे, तुम ही हो भाई, सारी की सारी चीजें तुमको ही करनी पड़ती हैं. बेस्ट सिनेरियो में तुम टीम होती है तुम्हारे पास एक, जो कि सब रिसर्च करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई, अगर मैं यूजर इंटरेक्शन में अच्छा हूँ तो मैं वही काम करूंगा. मेरा यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, राइट? User experience researchers provide factual information about how users are experiencing the product. Customer experience designer creates experience through the lens of customer. Like अभी क्या होता है, जैसे तुम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो, तो तुमको एक ऐसा पर्सपेक्टिव चाहिए होता है यूजर वाला, कि जब यूजर इस चीज को यूज करेगा तो वो कैसा फील करेगा. उसके लिए तुम यूजुअली अपनी एप्लीकेशन काफी सारे यूजर्स को भेज देते हो, एंड वो तुमको एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जो कि तुम अपने रिसर्च में यूज कर सकते हो, राइट? जो यूजुअली यूज होता है इंडस्ट्री में, वो क्या करते हैं, हमारे लेवल पे, छोटे लेवल पे, वो फीडबैक फॉर्म बना देते हैं एक, कि क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड फिर नॉर्मल जनता को हम भेजते हैं, एंड देन वी विल fill out and we will figure out what is the problem they are facing while using a product. तुम जाओगे फेसबुक, इंस्टाग्राम वाली साइट, मतलब ये जो भी साइट्स रहती हैं इनके, तुम साइट पर जाओगे, एक सेक्शन होता है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव. ठीक है, एंड समटाइम्स जब उनको तुम्हारा सोल्यूशन काफी अच्छा लगता है ना, दे इवन पे यू फॉर दैट. काफी कम लोगों को ये चीज पता है, लेकिन जो लोग इस चीज को करते हैं, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय जस्ट डूइंग दैट. एक्सपीरियंस डिजाइनर, बोर्ड डिजाइनर टाइटल फॉर डिजाइनिंग प्रोसेसिंग एंड सर्विसेज एंड इवेंट एंड एनवायरनमेंट. ओके, जब तुमको सारी चीजों का एक्सपीरियंस हो जाता है एट द एंड, तो तुम काफी सीनियर लेवल पर पहुंच जाते हो, जब तुम ये इवेंट वगैरह, सर्विसेज वगैरह सब खुद डिजाइन करने लगते हो, मतलब एक सुपरवाइज सॉर्ट ऑफ. तो चलो भाई, अब सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, कि अक्षर भाई तुमने इतना सब कुछ बता दिया है, व्हाट इज यूआई, व्हाट इज यूएक्स, क्या क्या चीजें उसमें यूज होती हैं, क्या क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स हम उसमें लगाते हैं, कैसे कि वो हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, कैसे चीजें काम करती हैं. हाउ मच डज अ यूएक्स डिजाइनर मेक्स इन इंडिया? ये एक talent.com से उठाया मैंने. इट इज क्वाइट रिसेंट. ओके, विच इज 7 लाख पर एनम, जो कि स्टार्ट होती है 4,50,000 से, एंड हाई तुम्हारी चली जाएगी 18 लाख तक. ठीक है, बट दीज आर जस्ट अ नंबर, एंड ये इंडिया के यूआई यूएक्स डिजाइनर के नंबर हैं. बट मैंने काफी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो फॉरेन से क्लाइंट्स उठाते हैं, एंड एक क्लाइंट के वो 10,000 डॉलर्स ले लेते हैं, 10,000 डॉलर चार्ज कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट के, आफ्टर अ सर्टेन एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स. तो इंडिया में एज ऑफ नाउ, जैसे स्टार्टअप का ग्रोथ हो रहा है, अभी काफी स्टार्टअप का ग्रोथ हो रहा है. रिसेंटली मेरे को कॉल आई थी एक स्टार्टअप से, कि टू डिजाइन देयर यूआई यूएक्स. या तो जैसे जैसे इंडिया में इनोवेशन बढ़ रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, यूआई यूएक्स की जॉब भी बहुत बढ़ रही है. तो इट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री राइट नाउ आफ्टर डेव. So Akshay, how can I get started as a college student? ठीक है, तुमने मुझे सारी चीजें बता दी, मेरे को अब काफी अच्छा एक आइडिया हो चुका है कि यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, and उसमें क्या क्या चीजें करते हैं. बट हाउ कैन आई गेट स्टार्टेड विद इट? सो अभी तो हम सब कॉलेज में ऑलरेडी आ ही चुके हैं, लेकिन एक ऑप्शन होता है काफी अच्छा, जो कि मैंने काफी सारे सीनियर से बात करी है. वो लोग ये प्रेफर करते हैं. वो क्या करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद एचसीआई, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में मास्टर्स करते हैं, एंड उसके बाद जो टॉप लेवल की कंपनीज है ना, वो तुमको हायर करती हैं, जो 10-10, 15-15 लाख आराम से फ्रेशर बेसिस पर तुमको मिल जाता है आराम से.
वो कंपनी तुम्हें हायर करती है, एंड बट इट इज ओनली स्पेसिफिक टू आईटी एंड सीएस स्टूडेंट्स। तो चलो अभी जैसे हम सब कॉलेज में हैं, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेट मी टेल यू अनदर थिंग। एनरोल टू ऑनलाइन कोर्सेज लाइक कोर्सेरा, यूडेमी एंड वॉच यूट्यूब वीडियोस। कोर्सेरा पे कोर्स है गूगल का, गूगल सर्टिफिकेशन कोर्स विच इज क्वाइट फेमस, एंड उसकी यूजुअली सर्टिफिकेट्स की इतनी वैल्यू रहती नहीं है, बट उसकी काफी वैल्यू है इंडस्ट्री में राइट नाउ। बिकॉज वो कोई कोर्स नहीं है कि तुम एक दो महीने में खत्म कर दोगे। इट टुक टेक्स अराउंड 7 to 8 months टू कंप्लीट इट। तो उसकी काफी अच्छी वैल्यू है। यूट्यूब में भी काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज रखे हुए हैं, तुम उनसे भी देख सकते हो। एंड बाकी यूट्यूब पे भी काफी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तुम लोगों के लिए, तुम वहां पे जाओ देखो। बाकी कोई भी दिक्कत आए लेट मी नो। मैं एक गाइड ही बनाऊंगा अभी जब सेशन ओवर हो जाएगा, ये मतलब हमारे एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे, उसके बाद हमें एक वर्कशॉप करवाएंगे कॉलेज में ही यूआई यूएक्स के ऊपर। तो तब मैं तुमको एक गाइड प्रोवाइड करूंगा जिसमें काफी सारे रिसोर्सेज होंगे, जो कि तुम्हारा काफी सारा टाइम बचा लेगी इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड। सेकंड, फाइंड अ मेंटोर टू गाइड देम। तो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने अभी रिसेंटली एक साइट डिस्कवर करी है विच इज क्वाइट गुड। वेट अ सेक। तो एंड आई हैव यूज्ड इट अ कपल ऑफ टाइम। इसमें क्या है, तुम जो इंडस्ट्री में टॉप पे बैठे हुए हैं ना लोग, तुम उनसे मेंटोरशिप ले सकते हो फॉर फ्री। सो लाइक adp.list.org, किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस फील्ड। लाइक तुम इस वाले सेशन में जाओगे, तुमको यहाँ पे काफी सारे मेंटोर्स मिल जाएंगे विच आर ऑलरेडी एट वेरी गुड पोस्ट, एंड जिनसे तुम बात कर सकते हो राइट नाउ। लाइक अगर तुम यहाँ पे इंडिया सर्च करते हो, या प्रोडक्ट डिजाइनर्स, यहाँ पे तुम्हें काफी अच्छे अच्छे इंडिया के प्रोडक्ट डिजाइनर्स मिल जाएंगे जो काफी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं इस टाइम, एंड तुम उनसे मेंटोरशिप सेशन ले सकते हो। लाइक तुमने कोई डिजाइन बनाया, ओके, तुमको वो चाहिए, क्रिटिक्स चाहिए कि यहाँ पे मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरीके से मैं इसको और आगे ले जा सकता हूँ। अपनी केस स्टडी तुमको इम्प्रूव करनी है, तो दे विल गाइड यू। तो इट्स अ वेरी 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 गुड फील्ड, वेरी गुड वेबसाइट। आई वुड सजेस्ट यू टू यूज दिस। ऑल्सो ज्वाइन अ डिजाइन कम्युनिटी। डिजाइन कम्युनिटी में क्या है, काफी सारे, जैसे ड्रिबल हो गया, ये फिग्मा की अपनी अलग एक डिजाइन कम्युनिटी होती है हमारी। यहाँ पे तुमको बहुत सारे डिजाइनर मिल जाएंगे, उनके डिजाइन मिल जाएंगे। फिग्मा डिजाइन, ये रहा फिग्मा कम्युनिटी, तुम यहाँ पे जा सकते हो। एंड या काफी सारे इंस्पोज मिल जाएंगे तुमको, काफी सारे डिजाइनर से तुम बात भी कर सकते हो, अपना क्रिटिक्स भी ले सकते हो। तो इट्स गुड टू हैव। और काफी सारे डिस्कॉर्ड सर्वर भी होते हैं जहाँ पे तुम ये चीज कर सकते हो। बाकी जितनी भी सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं, मैं तुम लोगों को जब हमारी वर्कशॉप होगी तब सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। पार्टिसिपेट इन चैलेंजेस, लाइक देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड यूएक्स चैलेंज, यूएक्स चैलेंजेस। तो ये काफी सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो तुमको रोज के चैलेंजेस देते हैं विच यू कैन डू। कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, फाइंडिंग जीन स्टेट फेट, ठीक है, तुम इन साइट्स को एक्सप्लोर करो, तुमको काफी नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। सेट माइलस्टोन्स, यस, अपने एक माइलस्टोन से सेट कर लो एंड यू आर गुड टू गो। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज, दिस जॉब इज वेरी फ्लेक्सिबल। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू लाइक फ्रीलांसिंग। जब तुमको मन कर रहा है तुम जब काम करो, जब नहीं मन कर रहा है तुम तब मत काम करो। कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम देता है ये चीज तुम लोगों को। ठीक है, जैसे अभी स्टार्टअप कल्चर काफी इंप्रूव हो रहा है, तो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की काफी डिमांड है इस टाइम को। ठीक है, तो तुम वहां पर जॉब कर सकते हो। जैसे फ्रीलांसिंग में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जब तुमको पैसों की जरूरत है क्या पता उस टाइम तुम्हें क्लाइंट ना मिले। ओके, स्टार्टअप में एक थोड़ी जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तुम लोगों को। तुम कोई डिजाइन एजेंसी यूज करते हो,
like there are so many famous in agencies that provide various services, तो वहाँ पे UI UX की डिमांड काफी अच्छी रहती है, बिकॉज इंडिया में टू बी ऑनेस्ट इतने अच्छे UX डिजाइनर्स नहीं है अभी टू वर्क। तो जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेगी, थोड़े पॉपुलर होएगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, वैसे वैसे लोग चीजों को समझेंगे। एमएनसीज एमएनसीज में तुम जॉब कर सकते हो। मे बी एमएनसीज थोड़ा देखती हैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस मास्टर्स इन एचसीआई, राइट? तो एमएनसीज वगैरह कुछ देखती हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलता है भाई, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लोग तुमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी हायर करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी तुमको हायर करती हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर, कि हमारी हमारे प्रोडक्ट में ये दिक्कत आ रही है, कि लाइक जैसे फेसबुक की जो लाइक बटन वाली दिक्कत थी, वो किसी यूआई यूएक्स डिजाइनर के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई देख ये दिक्कत आ रही है हमारे में, लेट्स सॉल्व इट। तो फिर वो बंदा वो चीज सॉल्व कर देगा। सो यू माइट आस्किंग कि व्हाट यूआई यूएक्स डिजाइनर्स एक्चुअली डू, अक्षय? हियर्स अ समरी ऑफ इट। ये सब चीजें तुम डेप्थ में पढ़ोगे जब हम वर्कशॉप करेंगे, तब ये छोटी, ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा मैं तुम लोगों को उस लाइव वर्कशॉप में। एंड देन वी विल बी बिल्डिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम क्या है। वो कैसे पता लगी? कि यूजर से ही पता लगेगी, यूजर से के पर्सपेक्टिव से पता लगेगी, राइट? आइडिएशन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट वुड बी, फिर यूएक्स अपना दिमाग लगाता है कि व्हाट हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। लाइक रिसेंटली मैंने देखा है, रिसेंटली काफी रिसेंट है, तो यूट्यूब में एक चेंज आया। अगर तुम लोगों ने यूट्यूब अपना अपडेट कर रखा होगा, तो जैसे वीडियो चलती है तो जो रेड लाइन आती है वो अब, हाँ यस, तो वो अब रेड लाइन काफी नीचे आने लग गई है व्हाइट लाइन में, ठीक है? तो इट्स अ वेरी वेरी गुड चेंज। डिजाइनिंग हाउ प्रोडक्ट वुड डू दैट, डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिजाइन, ये हमारा सारा डिजाइन वाला पार्ट आ जाएगा, फिग्मा वाला पार्ट, कि एट द एंड ऑफ इट प्रोडक्ट क्या कैसा लगेगा हमारा, ओके? डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिजाइन, उसके बाद जब हमारे यूएक्स डिजाइन हमारे रेडी हो जाएगा, उसके बाद जब हम उसको डिजाइन कोडर को देंगे कोडिंग करने के लिए, तो वो वाला प्रोसेस है टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोडक्ट एंड चेंज बेस्ड ऑन द रिजल्ट। उसके बाद टेस्टिंग वाला प्रोडक्ट, टेस्टिंग वाला फेज हमारा चलेगा। बेसिकली वी डिजाइन द वे थिंग्स वर्क इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। ऐसे ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल में हमारा काम होता है। एंड यू नो व्हाट गाइस, काफी सारे यूएक्स डिजाइनर ये भी करते हैं, आफ्टर अ सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तुमको 2-3 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री लेवल का, तो प्रोडक्ट डिजाइन में ही जाते हैं, जो स्क्रैच से बिल्ड करते हैं प्रोडक्ट। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी, उनको के पास कोई फाउंडर आया, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है, एंड इट इज अ वेरी हाईली पेइंग जॉब इन इंडिया टू, ओके? तो अक्षत, हाउ वुड आई डिजाइन? ठीक है, डिजाइन वाला वो जो प्रोडक्ट जर्नी थी, तो तुमने समझा दी। हाउ वुड आई डिजाइन एग्जैक्टली? सबसे पहला जो फेज होता है हमारा रिसर्च फेज होता है। देन एक्सप्लोर द रूट्स, कि हम इसमें रिसर्च करते हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, वो कोडिंग वाला, कोडिंग प्लेटफॉर्म वाला, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है? तो कोडिंग निंजास ने अभी रिसेंटली यही करा है। जब से वो लॉन्च हुई है, उन्होंने एक जैसे स्टूडेंट्स को ना क्या मेन क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे, बट यूट्यूब से समझ में आ रहे थे, बट दे कांट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उनके पास कोई बंदा नहीं था जो कि उनको प्रॉब्लम्स बता दे कि भाई तू ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स। मेंटोरशिप की काफी कमी थी, ठीक है? तो कोडिंग निंजास ने यही चीज करी, उन्होंने अपने कोर्सेज बेचे एंड मेंटोरशिप प्रोवाइड करी। तो दैट इज व्हाई दे आर लीडिंग इन इंडस्ट्री। देन एक्सप्लोर द रूट्स, कि भाई मेन दिक्कत क्या है, कि उसको उसके उसके डाउट डाउट सॉल्विंग में दिक्कत है,
राइट? देन एक्सप्लोर द आइडियाज कि हम उसके डाउट सॉल्विंग कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये वाला फेज आ जाता है। वैसे ये फेजेस काफी बड़े रहते हैं एंड तुम अकेले इन सब चीजों को नहीं सोचते, तुम्हारे पास एक पूरी टीम होती है सोचने के लिए, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम चूज द बेस्ट। फिर तुम जितने भी सारे टीम ने में ऑप्शन सोचे होते हैं उनमें से बेस्ट चूज करते हो। एंड दिस फेज इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, टेस्टिंग द आइडियाज। उसके बाद तुम उसको डिजाइन करते हो एंड प्रोटोटाइपिंग करके उसको टेस्ट करते हो। दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस एंड यू गेट थिंग्स wrong, you research why and you make changes and test। ये साइकिल है, चलती रहती है। एंड इसमें ऐसे नहीं है कि पहले ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है। इट इज नॉट ऑलवेज लीनियर, सम माइट कम हेड सम माइट कम लेटर। ये बस फेजेस हैं जो तुमको फॉलो करने पड़ते हैं while बिल्डिंग अ प्रोडक्ट और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, सो I have a problem for you guys। so there there is a toothpaste company, they want to increase their sale by 40%। let me know in the comments कि वो कैसे अपनी सेल 40% से improve कर सकती है। जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है, जैसे भी सोल्यूशन तुम्हारे माइंड में आ रहा है, लेट मी नो। एनीथिंग, एनीथिंग कि हम मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, एग्रेसिव मार्केटिंग कर देंगे एंड टूथपेस्ट का जो डिस्काउंट दे देंगे। एनीथिंग कि +20%, एनीथिंग जो भी तुम्हारे माइंड में फर्स्ट हिट कर रहा है। या फ्री वाइज, वेरी गुड ऑप्शन, काफी लोग काफी टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज का यूज भी करती है। यस, यस, ऑल ऑफ अस, आई वांट आंसर ब्रो। सब आंसर करो अपना, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है। एक यूएक्स अप्रोच, जो जो चीजें मैंने अभी तुम्हें बताई हैं, एक यूएक्स अप्रोच लेकर उसको सॉल्व करो। या सोशल मीडिया प्रमोशन, या so we can use a UX approach to handle this situation। You leverage on how the user thinks। तुम उसके थॉट प्रोसेस को सोचोगे कि भाई वो बंदा क्या सोच रहा है, ठीक है? दैट्स हाउ यू कैन मेक सोशल मीडिया, दैट इज व्हाट मेक सोशल मीडिया सो एडिक्टिव, राइट? तुम उसके साइकोलॉजिकली सोचते हो कि भाई वो यूजर है, वो क्या सोच रहा होगा, राइट? The leverage the power of UX of weakness in mind, human mind। So the answer is, yeah, very very good guesses। आशुतोष भाई, तो रिसर्चर्स ने क्या करा, दे इंक्रीज द साइज ऑफ होल ऑफ द टूथपेस्ट बाय 40%, नहीं बाय 2 mm। 2 mm इतना कोई ज्यादा वो तो होता नहीं है। उन्होंने बट वो जो होल था ना पेस्ट का, वो 2 mm से इंक्रीज कर दिया, ठीक है? ऑल क्रेडिट गोस टू यूजर डिजाइनर्स, यूजर एक्सपीरियंस। तो उससे क्या हुआ, जो टूथपेस्ट उनका 1 महीने में खत्म होता था, वो 25 to 20 डेज में ही खत्म हो रहा था। बिकॉज ह्यूमंस की टेंडेंसी है, जब तुम टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हो, एक लाइन बनाते हो तुम, ठीक है? ये चीज बचपन से तुम सोचते हुए आ रहे हो एंड यही चीज करते हुए आ रहे हो, ठीक है? तो उसकी वजह से तुम ज्यादा टूथपेस्ट यूज करोगे एंड विच इवेंचुअली लीड्स टू देयर मार्केट ग्रोथ। सो अब अपना हैंड्स ऑन सेशन करते हैं। मैंने इनिशियली तुम लोगों को एक फिग्मा फाइल का लिंक शेयर करा होगा, ठीक है? तो अभी तो मैं स्क्रैच से नहीं बनवाने वाला हूँ। आई explain you all the basic concept why I built this product and why I build like this only। okay, तो सबसे पहले हमने कलर्स की बात करी थी कि जितने कम कलर यूज करें हम अपने प्रोडक्ट में, लाइक तुमने मेरी पूरी पीपीटी देखी होगी, उसमें बहुत ही कम कलर यूज करे हैं मैंने, ब्लैक और पर्पल, ठीक है? यही ज्यादातर मैंने कलर यूज, एंड व्हाइट।
इसमें भी I have used these color only, and it's a very good practice as a designer to use limited amount of color. More 3 colors are more than enough for any design. तुम किसी अच्छी वेबसाइट पे जाओगे जिसका यूजर इंटरफेस अच्छा होगा, तुम वहां पे ये चीज नोटिस कर सकते हो वेरी क्लियरली. तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रिड. जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो फर्स्ट चीज हम करते हैं इज टू मेक अ ग्रिड. लेट्स मेक अ ग्रिड. ये सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका इंटरफेस क्या है. इस साइड सारी लेयर सेक्शन है हमारे कि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है. अगर तुमने कोई डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करा होगा देन यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर. बाकी जब हम वर्कशॉप करेंगे हम इन सब चीजों को डेप्थ में स्क्रैच से समझेंगे. ये इज द नेविगेशन मूव टूल. Yeah, I have sent it I guess. Okay. Wait. Yeah, let's discuss now. तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ग्रिड्स लगाते हैं हम सबसे पहले लेआउट में अपने. लेट्स ग्रिड्स. ये रैंडम ग्रिड्स आ गए यहाँ पे, बट वी आर नॉट गोना यूज दीज ग्रिड्स. हम इसका साइज चेंज करके टू कॉलम. ओके. एंड ये रेड अच्छा नहीं लग रहा हमारे बैकग्राउंड पे, तो हम ये चीज चेंज करके वाइट कर देंगे इसको. इसका टाइप चेंज करेंगे हम सेंटर. इसमें गटर हम लगाएंगे सेंटर 75. gutter here. Wait, like look at this. Yeah, look at this example of it. यहाँ पे तुमको फर्स्ट ग्लैंस पे सब exactly aligned लग रहा होगा. क्यों? Because of the grids. You don't see grids, but these are there, and we have used to design it. Like जो हमने अलाइनमेंट वाला प्रिंसिपल पढ़ा था, इट इज अप्लाइंग ऑन इट, राइट. ये सारी चीजें एक साइड अलाइन है. क्यों? बिकॉज देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. हमने जानबूझ के करी है बिकॉज इट्स लुकिंग विजुअली लुक अपीलिंग, राइट. ये चीज भी देख सकते हो तुम, हाउ इट इज अलाइंड. फिग्मा में काफी अच्छे फीचर्स हैं कि वो हर चीज का एक अलाइनमेंट तुमको, जैसे रेड ऑप्शन ही में दे रखा है. या फिग्मा लिंक, इट इज इन कमेंट सेक्शन. You guys can make. So did you guys notice the hierarchy over here? Any hierarchy? Let me know in the comments. While I have used in this design. Yes, Bhavna. We have used Z pattern to make it look good. यूजर पहले यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, राइट. एंड ऑल्सो इनिशियली जब तुम कोई फोटो ऐड करते हो, तो तुम्हारे अगर वो वेब पेज पे नहीं, इसके साथ नहीं जा रहा होता है ना, तो फिग्मा में काफी एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं उस फोटो को एज अ लिमिनोसिटी. तो फिर वो जो उसका बैकग्राउंड का कलर है उसी का सेम सॉर्ट ऑफ कलर ले लेता है, राइट. यू कैन सी हाउ एवरीथिंग इज अलाइंड प्रॉपरली. एंड प्रॉक्सिमिटी वाला प्रिंसिपल भी यहाँ पे काफी अच्छे से काम कर रहा है कि लाइक दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, देन दे आर इन अ सेपरेट बॉक्स, they are aligned to each other, right. Here's a navigation section. This is called navigation section, and this is called buttons. And in UX terms we also called it call to actions button. It can be anything, but more likely it is used to like buttons only. Okay, so after designing this thing, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है प्रोटोटाइपिंग वाला फेज. ओके. तो प्रोटो जैसे डिजाइन वाले सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, तो ठीक है. अगर हमको प्रोटोटाइप करना होता तो हमें इस ऑप्शन पे जाना पड़ता है. इस टूल के बारे में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उस वर्कशॉप में, तब मैं तुम लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. ओके, ठीक
ठीक है, चलो फिर इतना ही रहने देते हैं अभी। एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड वायर फ्रेम, जो कि मैंने नोटबुक पे बनाया था। वायर फ्रेमिंग वाला स्टेप, ये एक प्रोसेस होता है रिसर्च में। इसके बारे में मैं तुम लोगों को उस वर्कशॉप में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम टीम बनाएंगे अलग अलग लोगों की, एंड देन एक कंपटीशन रखेंगे बिटवीन देम। ओके, सो अपनी पीपीटी पे वापस आते हैं। एंड दिस सेशन इज इन नाउ, इफ यू वांट एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन, ही और शी कैन। Thank you, sir, for this wonderful session and sharing your valuable experience with us. Now it's time for to take up all your queries. Those who have any queries can ask in the chat box. I guess no one is having any query. Sir, there is one query. Sir, please tell some other platforms for designing. Yeah, you can use, there are various platforms for designing like Figma and Sketch, which is जो कि बस मैकबुक मतलब जो एप्पल प्रोडक्ट्स होते हैं उसी में अवेलेबल रहता है। एंड Adobe XD, which is a paid software, whereas Figma is completely free, and सारा काम इसमें हमारा हो जाता है, प्रोटोटाइपिंग, इंस्पेक्टिंग। लेकिन प्रोटोटाइपिंग वगैरह के लिए भी कुछ अलग टूल्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे फ्रेमर विच इज specific to prototyping. You can use this or that, anything you guys want. लेकिन इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ हम फिग्मा का करते हैं, क्योंकि इन दिस फील्ड you have to collaborate with so many other designers. Better to have it is better to have um, good knowledge of Figma only. Yes, yeah, sure, Bhavna. Let's go back to our design. Okay. So let's talk more about of this design. कि अक्षय, ठीक है, मेरे को एक लैंडिंग पेज बनाना, ओके, बट मैं इसको स्क्रैच से कैसे बनाऊंगा, राइट? तो जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो एक कंटेनर बनाना रहता है, जिसमें तुम्हें सारे के सारे कंपोनेंट्स डालोगे, राइट? तो तुम जब कंटेनर बना लोगे उसके बाद वो जो ये जो हमारा लेआउट वाला फेज जो रहता है, देन यू विल डू दिस। एंड उसके बाद तुम रिसर्च वाले फेज में जाते हो कि भाई मैंने अपना जो बनाना चाहिए, इसको क्या मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। ऊपर नेविगेशन बार, देन यहाँ पे एक इमेज हो जाएगी हमारी, यहाँ डिस्कवर एनएफटी ऑप्शन, यहाँ बटन आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे फीचर्ड ऑन आ जाएगा। ये सब रिसर्च में आया था। ओके गाइस, तो आफ्टर दैट बाय यूजिंग दिस, तुमने ये इलस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन देखी, एंड कुछ यूएक्स डिजाइनर्स इलस्ट्रेशन खुद भी डिजाइन करना पसंद करते हैं। ओके,
सो देन तुमने यहाँ पे भी एक विजुअल हायरार्की का यूज करा हुआ है, इफ यू गाइस सी एंड हाँ, सो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉन्ट्स एंड उसके वेट में, तो यहाँ पे मैं वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। लाइक इसमें मैंने आउटफिट वाला फॉन्ट यूज करा है, राइट? ठीक है, पूरे डिजाइन में मैंने आउटफिट वाले फॉन्ट यूज करा है, हर जगह पे डिफरेंट वेट्स। लाइक यहाँ पे मुझको ज्यादा टेंशन देनी थी तो फिर मैंने बोल्ड वाला फेज यूज करा है। ओके, यहाँ पे मुझे कम देनी थी तो एक विजुअल हायरार्की बनाई मैंने। देन यहाँ पे मुझे कॉल टू एक्शन बटन्स लगाने थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी थी, जिसके थ्रू हम मतलब डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं दोनों बटन्स में, एंड इट इज लुकिंग गुड विजुअली, राइट? सो एंड आफ्टर दैट इजेड पैटर्न वाली बात, ये तुम मोस्टली किसी भी वेबसाइट में जाओगे तुम लोगों को पता लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जी पैटर्न बना हुआ है, ओके। एंड देन टेस्टिमोनियल वाला जो पार्ट मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करा था, ये ऑलरेडी चीजें हमने डिजाइन कर रखी हैं रिसर्च में, विच यूजर इंटरफेस डिजाइनर एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम इन फिग्मा। हाँ, या एज अ फ्रेशर तुम देखो, एक्चुअली मैं भी अभी फ्रेशर ही हूँ, तुम लैंडिंग पेजेस डिजाइन कर सकते हो, राइट? या लाइक इसी का मैंने एक वेब पेज, वेब वर्जन भी इसका मैंने डिजाइन करा था, तुम ये डिजाइन कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक ये इस साइट पे मैं काम कर रहा था अपने फ्रेंड की अ लॉन्ग टाइम, इसको तो काफी टाइम हो गया मेरे को बनाए हुए। तो इसका हम एंड प्रोडक्ट तो नहीं बना पाए थे, बट मैंने इसका फिग्मा यूआई इंटरफेस बनाया था अपने फ्रेंड के लिए। तो तुम एज अ पोर्टफोलियो यूआई का यूआई बना सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ अगर तुमको प्रैक्टिस रिसोर्सेज चाहिए तो हम वर्कशॉप में उसमें डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिस रिसोर्सेज। हाउ टू नो आई डिजाइन does the designer that created is good? A very good question, ईशा। मैंने तुम लोग को जो साइट बताई थी ना, वो एडीपी वाली, या दिस वन, तुम यहाँ पे मेंटोरशिप ले सकते हो इनसे एंड इनसे पूछ सकते हो। ये ऑल ऑफ दीज आर वेरी हाईली working professionals and you can discuss these from these people, and you can check whether they are following all the principles which I have talked about in this presentation. Okay, so any further queries? Sir, there is one more query. What should be my approach to become UI UX designer, and how to select project to work upon to showcase in my resume? Yeah, okay, it's also a very good question. Like, how should I, like तुम वेरियस कोर्सेज में, जैसे मैंने इस टाइम गूगल कोर्सेज में पार्टिसिपेट, गूगल कोर्सेज दे रखे हैं मैंने, तुम वो भी कर सकते हो। एंड जैसे जैसे तुम उस कोर्स में आगे जाओगे तुमको वो टास्क देंगे एंड चीजें समझाएंगे, ठीक है। एंड काफी सारे ऐसे साइट्स होते हैं, तुम्हें लेट मी शो यू। या ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारी ये पिंटरेस्ट हो गया हमारा, केस स्टडीज के लिए केस स्टडीज, इस पे तुम जाकर अपनी केस स्टडीज इंप्रूव कर सकते हो एंड देख सकते हो कि बड़े बड़े डिजाइनर्स ने क्या क्या केस स्टडी करी जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े डिजाइनर हैं, राइट? ऑल्सो व्हाट मेक्स गुड यूएक्स, गुड यूजर डिजाइन, ये भी एक, या ये काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम जाके काफी अच्छी अच्छी नॉलेज ले सकते हो एज अ फ्रेशर एंड इन चीजों को अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके आशुतोष?
Yeah. Any other question? Anyone? किसी कोई स्लाइड में कोई दिक्कत है? कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझ में ना आया हो, कोई चीज रह गई हो? एनीथिंग यू गाइस कैन आस्क. कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो? Yeah, Isha, it's a part of UI, of course. Everything you see on your screen, it's a part of a UI. Like तुम infinitely वहां पे scroll करे जा रहे हो, but there is nothing happening, right? तो इस पे यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस दोनों का ही रोल आ रहा है कि नथिंग इज हैपनिंग, ये तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस हो गया. बट जो यूआई जो तुम्हें दिख रहा है, इट इज यूआई. I guess there are no more queries left. Now you all are provided with the feedback form in the chat box, which is necessary to be filled in order to get the certification. Thank you all the participants for being here with us today. We had a great time and we hope you did it too. If you would like to move forward, we love to help you out. You can consult it with Sir. Have a wonderful day.